Hello student, welcome you back in this physics video. In today's video, we will learn about of vector product and other name given to it as cross product of two vectors. So how do we show this vector product or either cross product? If I want to find out the product of two vector with the help of this vector product or that cross product, then here I am having one vector, it is A, and second is B. So put the cross between them. Okay, this is what? This is cross product. So when I will take the cross product of two vector, this will give me a new vector, a single new vector. ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एक नया सिंगल वेक्टर देगा. ठीक है, so therefore here this new vector it is going to be C vector. But the magnitude of this new vector, इस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस C वेक्टर इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर. सो हेयर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, एंड साइन क्रॉस जो है इसमें साइन में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ ए बी साइन ऑफ थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस न्यू वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर. ठीक है, तो जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पर सपोज कर लो डायरेक्शन जो है दिस इज एन यूनिट वेक्टर. ठीक है, सो व्हाट इज दिस एन यूनिट वेक्टर? दिस इज डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर. ठीक है, तो जो ए और बी वेक्टर को कंटेन करता है उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, सो दैट्स वी गॉट ओवर हियर. What is cross product? So cross product it is given by that cross between the two vector. So whenever we are going to find out the cross product, we are getting a new vector. What the magnitude of this new vector? It is given by the product of the magnitude of two vector and sine of the angle between them. तो ये जो थीटा है this is the angle between A and B. तो A B के बीच का जो एंगल है, and the direction of this new vector it will be perpendicular to that A vector and B vector plane. ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट विल बी गिवन आउट विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हैंड स्क्रू रूल. तो जो राइट हैंड स्क्रू रूल है स्टूडेंट, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जो न्यू वेक्टर है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट दिस राइट हैंड स्क्रू रूल सेज दैट? सो इट सेज दैट होल्ड द स्क्रू फ्रॉम टू पोजिशन. ठीक है, ये जो स्क्रू है उसको आपने क्या करना है, दो पोजिशन से होल्ड करना है, एंड देन रोटेट इट. ठीक है, सो व्हेन यू विल रोटेट इट इन सच अ वे दैट इट एडवांसेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, आपने क्या किया, इस स्क्रू को ऐसे रोटेट किया. ठीक है, तो जिससे क्या हो गया कि हमारे पास ये स्क्रू जो है आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो द डायरेक्शन इन विच स्क्रू विल एडवांस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट सिंगल वेक्टर विच सी वेक्टर. ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये उस सिंगल वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो उस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, सो वंस अगेन दैट चेक दैट व्हाट इज दिस राइट हैंड स्क्रू रूल सेइंग दैट होल्ड द स्क्रू फ्रॉम इट्स टू पोजिशन. तो थंब विल बी एट ए पोजिशन एंड फिंगर विल बी एट बी पोजिशन, एंड देन गिव अ रोटेशन. So when you will give a rotation, so then this screw will advance forward. Okay, so the direction in which this screw will advance, so that will be the direction of this new vector. Okay, so that's it is direction is given by n unit vector, and this is shown over here that this is n unit vector. Okay, so therefore what this right hand screw rule help us to find out? So this help us to find out the direction of that single vector which is perpendicular to that plane containing a vector and b vector. Okay, and if you have to find out this unit vector student, then unit vector will be given from this formula. It is that cross product of two vector, and it is AB sine of the theta. Okay, so with the help of this formula that you can find out this unit vector.
Okay, and moreover there you can do one thing, that if the angle between these two vector is going to be 90 degree over here, so that implies the direction of this C vector will be given by A vector cross B vector upon में AB. Okay, so with the help of this formula you can find out the direction of a C vector. So this C vector, it will be perpendicular to that plane which is containing A vector and B vector. Now over here here why the product of these two vector is named as vector product, because the product of these two vector gives us a new vector which is having its magnitude as well as its direction. So therefore this is given the name of vector product, and this vector product, it is shown by putting the cross between the two vector. Now let us study about its that properties. So properties of vector. So first property, that it does not obey commutative law. Commutative law in the sense to show over there that A vector cross B vector, so it will not be equal to B vector cross A vector. तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम रहता था, बट ओवर हेयर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बट एक्चुअली ओवर देयर क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें क्या होती है, नए प्रोडक्ट जो नया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल टू, अगर ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल बनना है तो द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट ओवर देयर, ठीक है। क्या होगा ये, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, सो दिस कैन बी शोन ओवर हेयर। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, this is that I am having that a vector, okay, and there it is going to be b vector, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a से b की तरफ इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। क्या किया, इसको यहाँ पर रोटेट किया, ठीक है, ऐसे जो a से b की तरफ रोटेट किया, ठीक है। तो जो रोटेशन है वो कैसी मिली इसको, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हैंड that thumb rule you can also find out the direction in which that the third vector will act, ठीक है। तो जब हम A से B की तरफ रोटेट करते हैं, सी ओवर देयर A पोजीशन A से B की तरफ रोटेट करना है, सो दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, सो द थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ दिस थर्ड वेक्टर। तो इसलिए जो थर्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बनेगी अलॉन्ग द थंब, दिस इज दैट थर्ड वेक्टर विच इज C वेक्टर, एंड दैट इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, जिसको क्या बोलोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो दिस इज थीटा ओवर हियर। सो हाउ विल यू राइट दिस क्रॉस प्रोडक्ट देन? सो इन दिस केस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी गिवन बाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, एंड दिस डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस डायरेक्शन इज गिवन बाई एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज ओवर हेयर क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ द सेकंड केस वी आर सपोजिंग दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर देयर इट इज बी वेक्टर एंड हेयर इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू रोटेट इट फ्रॉम बी वेक्टर टू ए वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, बी से ए की तरफ रोटेट करते हैं, ठीक है, बाय दिस स्मॉल एंगल थीटा। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू रोटेट इट फ्रॉम बी टू ए, सो सी ओवर देयर दैट योर फिंगर टिप इट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट रोटेशन, ठीक है। सो देयरफॉर द थंब विल डायरेक्ट यू दैट डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास थर्ड वेक्टर है वो किस तरफ जाएगा, इट विल बी इनटू द प्लेन, ये इस पेज में अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा, इस पेज के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये किसके अंदर आ रहे हैं, इस पेज के अंदर, और जो थर्ड वेक्टर है वो किस तरफ जा रहा है, उन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसलिए जो डायरेक्शन है राइट नाउ इट विल बी
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बी से ए की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या बनेगा, ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। सो दिस विल बी दैट आवर सी वेक्टर, ठीक है। नाउ ओवर हेयर जो डायरेक्शन है इसकी, अब यहाँ पर क्या थी अपवर्ड में, तो ये क्या थी पॉजिटिव, और इसमें क्या होगी हमारे पास ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स होगी इसलिए नेगेटिव यूज़ हो गया। सो दैट्स वी ऑब्टेन्ड ओवर हेयर दैट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इट इज़ b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम and thus direction is here which is of an unit vector but with a negative sign, or either we can say that it is ab sin theta an unit vector but there is the negative sign. So this is b cross a vector. So we will find over here these two equations, first and second. So in that one you will find that from first and second this a vector cross b vector is equal to minus of b vector cross a vector, ठीक है। क्योंकि ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, तो इसलिए ए क्रॉस बी क्या होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसका मतलब है ए क्रॉस बी कैन नॉट बी रिटन एज बी क्रॉस ए, ठीक है। क्या लिखना होगा आपको माइनस ऑफ बी, तो इसमें मैटर करेगा फर्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, पहले किसको लिखा गया, जबकि डॉट प्रोडक्ट में होता था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इट वाज। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज ऑफ दैट वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, okay. So this is distributive over addition. So there it is that b vector and c vector are going to add, so they are inside the bracket, and this a vector it is in a cross product, okay. So over here this a vector firstly it will take the cross product with b vector, thereafter it will take the cross product with c vector, okay. तो इसलिए a vector किसके साथ फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट करता है, इट इज़ विद b vector, रिमेंबर ओवर देयर जो पोजीशन है वो इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए, अगर पोजीशन इंटरचेंज होती है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए वेक्टर और दूसरा कौन बनेगा बी वेक्टर, तो इसलिए ए क्रॉस बी, और देयर आफ्टर नेक्स्ट ए वेक्टर, और वो किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है सी वेक्टर के साथ। सो दिस इज रिटन ओवर देयर, तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन बन जाता है। नाउ द थर्ड केस, व्हेन वी आर गोइंग टू से दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, या फिर इसको ऐसा भी बोला जा सकता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, तो अगर दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। सो देयर वी कैन से इट इज़ आई एम हैविंग वन वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर, एंड आई एम गोइंग टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट विद द सेम, ठीक है। तो सेम के साथ ही हमने क्या कर दिया, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो वी विल ऑब्जर्व ओवर हेयर ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे ए का मैग्नीट्यूड, और फिर ये क्रॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, एंड द एंगल दैट दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो ओवर हेयर डायरेक्शन विल बी गिवन बाई एन यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो भी इनकी डायरेक्शन होगी, बट हाउ मच इज़ द एंगल बिटवीन दैम, तो ये जो दोनों वेक्टर है वो तो सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हुई सेम हुई, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तो एंगल क्या लोगे आप 0 डिग्री लोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या शो करना है आपने, साइन थीटा की जगह क्या शो किया 0 डिग्री शो किया, तो जिससे क्या हो जाएगा साइन 0 0 एंड दिस होल विल 0, इसका मतलब दो सेम जो वेक्टर हैं, जो पैरेलल वेक्टर हैं, अगर उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है 0, तो जो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जबकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट क्या होता था ए बी के इक्वल आता था, है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, दिस विल कम ओवर देयर ए स्क्वायर, जब दो इक्वल वेक्टर ले लेते थे उसमें भी, है ना। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, so fourth property over here that
if we are going to take that it is I cross I, j cross j and that of k cross k, so what their product will be? तो आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में, जे और जे दोनों सेम डायरेक्शन में, के और के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि आई क्रॉस आई कैसे लिखोगे? आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच क्रॉस है, क्रॉस किस में बदल गया? साइन। तो दोनों क्या हैं? पैरेलल। पैरेलल में एंगल क्या लेते हैं? 0 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो होल टर्म विल बी जीरो। ठीक है, तो इसलिए दो सेम जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट जो था वो 1 होता था। ठीक है, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी ओवर है, दिस इज गोइंग टू बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है दोनों के बीच क्या बनेगा? एंगल 90 डिग्री का। इसका मतलब हो गया ए क्रॉस बी कैसे लिखते हो आप? ए बी साइन थीटा एंड दैट एन यूनिट वेक्टर। यही था क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का तरीका। तो एंगल कितना बना यहाँ पर? एंगल बता रहे हैं हमें 90 डिग्री का, तो जिससे क्या हो जाएगा? ए बी दैट इट इज़ साइन, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ए बी एंड दैट डायरेक्शन ओवर है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वहाँ पर हमारे पास बनेगी। सो दिस इज दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, नाउ ओवर हेयर सिक्स प्रॉपर्टी इज देयर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ अनलाइक यूनिट वेक्टर। तो अगर अनलाइक यूनिट वेक्टर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? सो एज वी आर नोन दैट देयर आर द 3 एक्सिस, सो हेयर इट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये जो तीनों एक्सिस हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो जेड एक्स है ये वाई के भी परपेंडिकुलर है और एक्स के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ये जो वाई एक्सिस है ये जेड के भी और एक्स दोनों के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस, और वैसे ही एक्स जो है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये सारी की सारी क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं? डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो एज वी विल नो ओवर हियर आई क्रॉस जे। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, तो हमारे पास आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और जो क्रॉस है वो किस में चला जाएगा? साइन। और आई और जे, आई और जे दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 90 डिग्री, जिससे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल कम टू बी 1। ठीक है, होल विल कम टू बी 1, लेकिन इसकी डायरेक्शन आई और जे के परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्या बनेगी? डायरेक्शन उस न्यू वेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर चेकआउट करना, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा है? के। तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर? जो न्यू वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी के यूनिट वेक्टर की तरफ। ठीक है, सिमिलरली ओवर है जो हमारे पास जे और के, तो के जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगी? जो हमारे पास न्यू वेक्टर बनेगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो जे और के परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास जे जो है वाई एक्सिस है और के जो है वो जेड एक्सिस है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा है? आई यूनिट वेक्टर। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसकी वो आई यूनिट वेक्टर बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ओवर देर के इंटू आई, तो के का मैग्नीट्यूड 1 और आई का 1 और साइन ऑफ दैट एंगल, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी उस न्यू वेक्टर की? तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए के और आई के परपेंडिकुलर कौन होता है? जे। ठीक है, सो दिस इज़ दैट वी आर हैविंग द शॉर्टकट ट्रिक। तो इसमें आपने क्या करना है? जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे। ठीक है, तो जब भी आप किन्हीं दो वेक्टर का, किन्हीं भी टू वेक्टर्स का एंटी क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमारे पास थर्ड वेक्टर यूनिट वेक्टर आएगा। जैसे आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? के। जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इट इज़ आई। के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इट इज़ जे। ठीक है,
तो इसलिए हमारे पास एनी टू यूनिट वेक्टर देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द थर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ इफ़ आई विल टेक इट इन क्लॉकवाइज, जैसे इसको मैं क्या करूँ क्लॉकवाइज में कंसीडर करूँ, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, आई और के का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होगा जे, लेकिन एट प्रेजेंट में क्या बनेगा ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ जे यूनिट वेक्टर। वैसे ही जो हमारे पास के और जे का क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्लॉकवाइज में, तो ये क्या होगा थर्ड यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन वो भी नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। और वैसे ही जे और आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो के यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन ये भी नेगेटिव। तो इसलिए क्लॉकवाइज में जो क्रॉस प्रोडक्ट लिए जाते हैं वो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में जो क्रॉस प्रोडक्ट लिए जाते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आते हैं। ओके, दिस इज़ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। Okay, that's all from my today's video. Remaining three property it will be discussed in the next video. So thanks for watching it. Have a good time.